مرها إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة إلى آخر الحديث أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. يا رب صل على المختار من مزري أزكى الخلائق من عرب وعجم. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. ایک بات سمجھنے کی ہے کہ دین کتنی چیزوں کا نام ہے. جب ہم اس کو مختصر طور پر سمجھانے کی کوشش کریں گے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دین قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں مفسرین نے، محدثین نے، فقہا نے جو سمجھایا ہے وہ ہے 5 چیزوں کا نام. یعنی جب 5 چیزیں جمع ہو جائیں گی تو دین بن جائے گا. اس میں پہلے نمبر پر ہے عقائد. پہلے نمبر پر ہے عقائد. دوسرے نمبر پر ہیں عبادات. تیسرے نمبر پر ہے معاشرت. چوتھے نمبر پر ہے اخلاق. اور 5ویں نمبر پر ہے معاملات. عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق، یہ جب 5 شعبے جمع ہو جاتے ہیں تو اسی کا نام ہوتا ہے دین. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک شخص کسی ایک شعبے میں دین کے نام پر کوئی عمل کرتا ہے، باقی شعبوں کی طرف اس کی توجہ نہیں ہے، تو یہ ہوا کہ وہ مکمل دیندار نہیں ہے. شریعت کے مطابق اس کی زندگی نہیں گزر رہی ہے. ہم جب غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ عقائد کا جو شعبہ ہے اس پر تو مسلمان حساس رہتا ہے کہ عقیدہ خراب نہیں ہونا چاہیے، عقیدہ ٹھیک رہنا چاہیے. عقیدہ جس طرح اہل سنت والجماعت کا بیان کردہ ہے پیچھے سے، قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں جو عقیدہ ہونا چاہیے ایک انسان کا، اس میں تو آپ کو فکر ہوتی ہے، مجھے فکر ہوتی ہے، عقیدہ اس پر محنتیں ہوتی ہیں. اس لیے ہر مسلمان شرک کو گناہ سمجھتا. اس لیے ہر مسلمان کے ہاں اللہ کا درجہ اللہ کا درجہ ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ تمام انبیاء پر، تمام مخلوقات پر اللہ کے بعد بہت زیادہ ہے. تو اللہ کے بارے میں عقیدہ، اللہ کے رسول کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، یہ جو عقیدے کی تحت چیزیں ہیں تو اس کو ایک انسان سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. اور نمبر 2، عبادات کے معاملے میں بھی وہ کوشش کرتا ہے کہ نمازیں اس کی درست ہوں. نمازیں وہ پڑھتا بھی ہے، ادا کرتا ہے، ساتھ میں کوشش کرتا ہے کہ وہ نمازیں صحیح ہوں. اگرچہ اس میں بھی سب لوگ شامل نہیں ہوتے، پڑھنے والوں کے مقابلے میں نہ پڑھنے والے زیادہ ہیں. نہ پڑھنے والوں کو اس کی کوئی فکر نہیں کہ کیسا ہونا، نماز کا طریقہ کیا ہوگا، وہ چونکہ پڑھتے ہی نہیں ہیں. اور پڑھنے والوں میں بھی کمی یہ ہے کہ وہ کس طرح نمازیں ادا کرنی ہے، کیفیت صلاح کیا ہوگی. تو اس میں بھی آپ کی میری کمزوریاں ہیں. اگرچہ اس طرف مسلمانوں کا رجحان ہے، عام طور پر نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، مسجدوں میں نہیں ادا کرتے، پھر گھروں میں ادا کرتے ہیں. کم از کم جمعہ کے دن لوگ مسجد میں جمع ہو جاتے ہیں تو اس کی فکر رہتی ہے. اگرچہ اس میں 100% کامیاب نہیں ہیں ہم لوگ. اور تیسرے نمبر پر ہیں معاملات. معاملات کے اعتبار سے جہاں تک ذاتی تجربہ ہے وہ یہ کہ فون آتے ہیں لوگوں کے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تاجر طبقے کو، ملازم طبقے کو، لین دین کرنے والوں کو فکر رہتی ہے کہ ہمارا لین دین شریعت کے مطابق ہونا چاہیے. لیکن اس میں بھی شاید 1% بھی نہیں ہوگا. اکثر لوگ نہیں پوچھتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملات والا شعبہ ہمارا متاثر ہے، اگرچہ پورا متاثر نہیں ہے. وہاں بچ گئے 2 شعبے، اخلاقیات اور معاشرت، یہ بالکل متاثر ہیں. یعنی زیادہ سے زیادہ ہمارے ایک بہت بڑے عالم فرماتے ہیں غور و فکر کرنے کے بعد کہ ان 3 شعبوں میں کچھ توجہ ہے مسلمانوں کی. عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے،
इबादत ठीक होनी चाहिए, मामलात कुछ न कुछ पूछते रहते हैं मामलात से मुतालिक, लेकिन अखलाक और मुआशरत से मुतालिक बिल्कुल नहीं पूछा जाता है। जबकि मुआशरत की इतनी अहमियत है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान हो ही वही सकता है, मुसलमान इसके बगैर दूसरा नहीं होगा। इसको आसान अल्फाज में अगर यूं समझे, अल मुस्लिम मुसलमान वही फर्द होगा, वही शख्स होगा, मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि जिसकी जबान से और जिसके हाथ से दूसरे मुस्लिम अफराद महफूज रहते हो। अब मुसलमान यहां पर खास करके कहा गया है, वरना असल में रिवायात यह है कि पूरा हर इंसान आपसे महफूज रहता हो, चाहे वो मुसलमान हो या न हो। क्योंकि अक्सर मौकों पर नास 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 अल्फाज आए हैं अहादीस और कुरान करीम में भी। खैरुन नासी मन यनफउन नास, सबसे बेहतर इंसान वो है जो दूसरों के लिए मुफीद बने। नास मन यनफउन नास, इस नास में मुसलमान भी दाखिल है, इस नास में गैर मुस्लिम भी दाखिल है, इसमें अकीदे का खराब इंसान भी दाखिल है, बदअकीदा भी दाखिल है, लफ्ज है इंसान, कोई भी दाखिल है। किसी भी इंसान का उसकी जबान से और उसके हाथ से महफूज रहना अगर ये है किसी की जिंदगी में, तो समझो हकीकी मानों में मुसलमान वही है और इसका ताल्लुक मुआशरत से है। इसको आप यूं समझ सकते हैं अच्छी तरह कि मुआशरत, इबादत और अकायद और मामलात अपनी जगह लाजमी हैं, लेकिन मुआशरत कितनी जरूरी है एक इंसान के लिए कि हजर अस्वद का बोसा देना यह सुन्नत रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन फुकाहा कहते हैं कि अगर तुम्हें लगे कि मेरी वजह से दूसरे को धक्का लग सकता है, तकलीफ पहुंच सकती है, फिर ऐसे मौके पर हजर अस्वद का बोसा देना जायज, जब सुन्नत थे तो नाजायज क्यों हो गया? वजह उसकी यह है कि दूसरे को तकलीफ पहुंचाकर कोई इबादत अंजाम देना यह जायज नहीं है। दूसरे को तकलीफ पहुंचाकर किसी सुन्नत का अदा करना शरीयत उसको पसंद नहीं करती। मुसाफा करना सुन्नत है। आपने कितनी दफा देखा होगा कि कोई बुजुर्ग आया और लगातार उसमें आ जाते हैं लोग, इसका कोई ख्याल नहीं रहता कि मुसाफा करने से कहीं उसको तकलीफ तो नहीं पहुंचेगी। तो मुसाफा करना सुन्नत, तकलीफ पहुंच रही है तो न करना ही बेहतर है, क्योंकि तकलीफ एक इंसान किसी इंसान को पहुंचाए, अल्लाह को यह बर्दाश्त बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने लिखा है कि बचपन में मुझसे गलती हो गई, बैतुल खला गया, मैं साफ करना भूल गया। बचपन में ये गलतियां हो जाती हैं, बैतुल खला साफ ही नहीं किया। तो कहते हैं कि वालिद साहब ने मुझे डांटा, मुफ्ती शफी साहब रहिमहुल्लाह ताला ने फरमाया कि ये दो चीजें हैं, फिर समझाया ये दो चीजें। एक चीज पर अहले मगरिब अमल करते हैं और एक चीज पर मुसलमान अमल करते हैं। जबकि मुसलमान और मगरिब बहसत इंसान तो दोनों चीजों पर अमल करने की जरूरत है। मुसलमान तहारत पर अमल करता है, तहारत का मतलब जिस्म को साफ रखना। इंसान ने पेशाब किया, पेशाब की जगह को साफ किया, यह है तहारत। लेकिन नजाफत भी तो कोई चीज होती है कि जगह को पाक रखना, अपने कमरे को साफ रखना, गलियों को साफ रखना, सहन को साफ रखना। हमने ये चीज मगरिब में देखी, वो तहारत तो नहीं करते, पेशाब जैसे कैसे कर लेते हैं, न पानी का इस्तेमाल है न मिट्टी का इस्तेमाल है, कुछ नहीं, उनके यहाँ कोई चीज है ही नहीं है, कोई जरूरी पाकी कोई चीज नहीं वहां। लेकिन वहां देखें कि सड़कें साफ होंगी, वहां पर आप देखें तो उनके घर साफ होंगे, वहां पर मार्केट साफ होगी, दुकानें साफ होंगी। इसके बरक्स मुसलमानों के यहाँ ये कमी पाई जाती है। तहारत तो वो कर लेते हैं, इस्तिंजा करेंगे, जरूरत के बगैर भी इस्तिंजा हमारे यहाँ मुसलमान करते हैं। जरूरत के बगैर का मतलब ये होता है कि आदमी जो है उसको पेशाब की जरूरत नहीं पड़ी और उसको वुजू की जरूरत है, चेहरा धोना है, हाथ धोना है, मसा करना है, पांव धोना है, उसने पेशाब नहीं किया, अब उसको इस्तिंजे की कोई जरूरत, यह तब भी करता है जबकि ये फजूल खर्ची में आ जाता है, ये पानी इसकी जरूरत ही नहीं थी। या इसी तरह कभी वुजू टूट गया, उसमें खुश्क हवा जो है वो निकली, तो उसमें भी उसको जरूरत नहीं थी इस्तिंजा की, तब भी ये कर लेता है। तहारत तो ये कर लेता है, मगर आम सफाई का कोई आपके यहां मेरे यहां एहतिमाम नहीं होता। अब आम सफाई का एहतिमाम न करना
یہ میں اس کو ضروری نہیں سمجھتا، جبکہ اس کی وجہ سے دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے۔ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ طہارت تو تم نے کر لی، تمہارا اس بیت الخلاء کو صاف نہ کرنا یہ دوسرے کے جانے کے، جو دوسرا آدمی وہاں جائے گا اس کے لیے تکلیف کا کیا بنے گا؟ سبب، جبکہ یہ ناجائز اور کیا ہے؟ حرام ہے۔ وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جس کی وجہ سے دوسرا آدمی پریشان رہے۔ اسی لیے جب آپ طواف کریں گے، طواف کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ہو گیا کہ بوسہ دیتے ہیں حجر اسود کا۔ اب بوسہ دینے کا وقت ممکن ہی نہیں، وہاں بظاہر مشکل ہے، بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، وہاں جانا تو دور کی بات ہے، جاتے ہوئے دھکے لگیں گے وہ بھی جائز نہیں۔ اب ہمارے علماء فقہا کہتے ہیں کہ استلام کرو۔ استلام کا مطلب یہ کہ سینہ یوں ہے، چہرہ کریں گے حجر اسود کی طرف، پھر ہاتھ یوں کر کے اس ہاتھ کو بوسہ دیں گے۔ اس ہاتھ کو بھی جو آپ بوسہ دیں گے کہ وہ بوسہ اتنا آواز میں نہ ہو کہ دوسرے کو تکلیف ہو جائے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یہ پھر کہاں سے وہ جائز ہوگا کہ وہاں جا کر ہم ویڈیو کالنگ کریں گے اور جناب والا اہلیہ کو دکھا رہے ہیں میں کس جگہ ہوں، میں طواف کر رہا ہوں، اور اسی میں بول بھی رہے ہیں کشمیری میں۔ قطعاً اس سے کوئی غرض نہیں کہ دوسرا ایک آدمی جو ہے تکلیف میں مبتلا ہے۔ معاشرت، میں سمجھا رہا ہوں معاشرت۔ اب یہ تب آپ اور ہم کسی بھی موقع پر کہیں پر بھی ہوں، اس حدیث کی روشنی میں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہی ہو سکتا ہے کہ جس کی زبان ہاتھ سے دوسرے کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ آپ کسی بھی شعبے میں ہیں، کوئی تاجر ہے، کوئی ٹریفک پولیس میں ہے، کوئی پولیس میں ہے، کوئی مولوی صاحب ہے، کوئی امام صاحب ہے، ہر ایک کا شعبہ الگ الگ ہے نا۔ اب دیکھیں ٹریفک پولیس کی بات آ گئی، اب یہاں پر اکثر تقریباً وہی ہوں گے۔ قرآن کریم نے ایک اصول دے دیا کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ قرآن نے جو اصول دے دیے ہیں نا، یہ قیامت تک کے لیے۔ یہ کتنی مضبوط ترین کتاب، کتنی بہترین کتاب، کتنی واضح کتاب ہے کہ کاش کہ ہم نے ہر شعبے میں اس کتاب کو فٹ کیا ہوتا۔ ٹریفک پولیس والوں نے اس کتاب کو سمجھا ہوتا، پولیس نے اس کتاب کو سمجھا ہوتا، عام تاجروں نے اس کتاب کو سمجھا ہوتا، آج ہماری دنیا میں یہ پانچوں کے پانچوں شعبے صاف اور پاک ہوتے، لیکن چونکہ سمجھا ہی نہیں ہے، اس وجہ سے غلطیاں ہر وقت ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر آپ جب پیدل چلیں گے خبردار تکبر کی چال نہ چلنا، اکڑ اکڑ کے چلنے کی تمہیں اجازت۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ زمین کو پھاڑو گے؟ تیز تیز چل کر اور پاؤں کی آواز، جو جوتوں کی آواز کے ساتھ، اپنے جوتے کے ساتھ پاؤں اب زمین پر زوردار انداز سے رکھتے ہیں، خاص کر وہ جوتے جو اپنے پاؤں میں بند رہتے ہیں اور آواز ان کی ہو سکتی ہے، اور آپ بہت زور سے زمین پر رکھتے ہیں اس جوتے کو، یہ چاہتے ہیں کہ زمین کو پھاڑیں گے۔ انک لن تخرق الارض، اللہ کہتے ہیں یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے، تم میں وہ طاقت نہیں ہے۔ ولن تبلغ الجبال طولا، تم یہ چاہتے ہو کہ تم بہت تیز چلو گے، اکڑ اکڑ کے چلو گے، دوسروں کو دھکے دیتے ہوئے چلو گے، اور چاہتے ہو کہ تم پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھو گے، ایسا ممکن؟ یا قرآن نے اصول دے دیا نا پیدل چلنے والوں کو، گھوڑے پہ چلنے والوں کو، کھچر پہ چلنے والوں کو، چونکہ اس وقت گھوڑے تھے، کھچر تھے، گدھے تھے، اور آدمی پیدل چلتا تھا۔ آج کی تاریخ میں کیا ہے؟ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، آج کی تاریخ میں اکڑ اکڑ کے چلنے کا مطلب ہے بائک والے، اکڑ پہ چلنے کا مطلب ہے سائیکل پہ چلنا، اکڑ اکڑ کر چلنے کا مطلب ہے ماروتی کوئی چلا رہا ہے، گاڑی چلا، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، اور جناب والا آپ آفیسر کوئی چل رہا ہے، آفیسر بیٹھا ہوا ہے گاڑی میں اور خوب دوڑا رہا ہے گاڑی کو، وہ اپنے شعبے کا خوب فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اس سے کوئی غرض نہیں کہ کہیں سامنے کوئی جناب والا کوئی خطرہ تو نہیں ہے، سامنے کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے، میری جناب والا ہارن کی وجہ سے، تیز چلنے کی وجہ سے، شور کرنے کی وجہ سے۔ قرآن نے کہا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ۔ اچھا ایک اصول ہمیشہ یاد رکھیں کہ اسباب کی نفی قرآن میں ہے ہی نہیں، قرآن یہ کہتا ہے اسباب کو اختیار کرو۔ یہ جو کچھ لوگوں کا ذہن بنا ہے نا کہ توکل 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 کرو، اس کا مطلب کیا سمجھا کچھ لوگوں نے؟ جن لوگوں نے یہ مطلب سمجھا وہ بالکل قرآن کے مخالف مطلب ہے۔
तवक्कल का एक मतलब लोगों ने यह समझा है कि कोई काम नहीं करना है, अल्लाह पे क्या करो, बैठे रहो, अल्लाह पे भरोसा करो। बैठे बैठे बगैर तदबीर इख्तियार किए हुए, बगैर असबाब के इख्तियार किए हुए अल्लाह पे भरोसा करना कुरान और हदीस की रोशनी में सराहन नाजायज है, इसकी इजाजत नहीं है। फिर तवक्कल किसको कहेंगे अगर इसकी इजाजत नहीं है? तवक्कल का वो मतलब जो आप और हम समझते हैं कि डायरेक्ट करो तवक्कल किमन पर, अल्लाह ताला पर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तवक्कल का मतलब क्या है जो कुरान ने समझाया, वशाविरहुम फिल अम्र, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से मामलात में मशवरा कीजिए। ये हुजूर का सहाबा से मशवरा करना ये सबब है, क्या है? आपस में गुफ्तगू कीजिए, कोई काम आपको करना है, तामीरी काम करना है, मशवरा कीजिए। ऑफिसर अपने छोटे मुलाजिमीन से मशवरा करे, अपने माथातू से मशवरा करे, अपने साथियों से मशवरा करे। वशाविरहुम फिल अम्र, यह है सबब, यह है तदबीर। उसके बाद दूसरे नंबर पर फैजा अज़म था, जब मशवरा करने के बाद नबी अलैहिस्सलाम से अल्लाह फरमा रहे हैं, जब आपका जहन किसी एक तरफ चला जाएगा, आप किसी फैसले पर आ जाएंगे, फतवक्कल अलल्लाह, उसके बाद भरोसा किस पे करें? तो भरोसा करने का नंबर कितने नंबर पर है? तीसरे नंबर पर है। भरोसा डायरेक्ट नहीं होगा, पहले तदबीर होगी, असबाब होंगे, मशवरा करने की जगह है तो मशवरा होगा, राय लेने की जगह है तो राय होगी, उसके बाद तवक्कल होगा। डायरेक्ट तवक्कल करने का मतलब यह है कि यह नाजायज काम में और नाजायज अमल में मुब्तला है हम। इसलिए ये जो निजाम, आप फर्ज करें यही निजाम आपका दिया हुआ निजाम, आजकल गाड़ियां चलती हैं, लाजिम कर देते हैं आप लोग की बेल्ट का क्या करो, इस्तेमाल करो। अब शरीय एतबार से क्या यह जरूरी है? कुरान की रोशनी में यह वाजिब के दर्जे में हो सकता है, वाजिब के दर्जे में होगा। क्यों? कि जो ही इसके बगैर कभी एक्सीडेंट होगा, उसमें दिल आ सकता है, उसमें सीना आ सकता है, उसमें चेहरा आ सकता है। और इधर से कुरान और हदीस ये कह रहा है कि जान की क्या करो, हिफाजत। उस हिफाजत के लिए जरूरी है तदाबीर के इख्तियार करना। उसके बाद तवक्कल करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? पहले गाड़ी में चढ़ेंगे, उसके बाद जिनाए वाला बेल्ट का इस्तेमाल होगा, उसके बाद बाकी चीजें इस्तेमाल करने के बाद स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाह करके, फिर करेंगे तवक्कल अलल्लाह। किन गोड़े करो तवक्कल, तदबीर पहले इख्तियार होंगे। हेलमेट का इस्तेमाल जरूरी करार देते हैं आप लोग, आखिर ये हेलमेट हम हाथ में क्यों नहीं इस्तेमाल करते, टांग में क्यों नहीं है? वजह उसकी यह है कि इसका ताल्लुक किससे है? सर से है। दिमाग को अल्लाह ताला ने महफूज जगह रखा है, और महफूज जगह रखने का मतलब यह होता है दिमाग अहम तरीन चीज है, इसी के जरिए काम होते हैं, इसी के जरिए बड़ी बड़ी तदाबीर इख्तियार की जाती हैं, इसी के जरिए दसियों चीजों का फरोग होता है, इसी से तरक्की होती है, इसी से इज्तिहाद होता है, इसी से हम तहकीक करते हैं, इसी से हम सोचते हैं। इसी की हिफाजत के लिए अगर तदबीर का इस्तेमाल हो तो सीधी सी बात है, गोया की शरीयत पर आप अमल कर रहे हैं। किस पर अमल कर रहे हैं? अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के पास एक सहाबी आए, उनके साथ ऊंट था, ऊंट। उसके बाद फरमाया कि या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूं कि मैं 2 रकात नमाज अदा करूं। ऊंट को छोड़ दिया। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया ऊंट को किसी से बांध दो, उसके बाद जनाब वाला नमाज में क्या हो जाओ, शरीक हो जाओ, शाम नमाज को अदा करो। ये बांधना जो है, हमारे उलमा ने कहा कि इसका मतलब यह है कि जब तक किसी तदबीर को आप इस्तेमाल नहीं करोगे, जब तक असबाब को इख्तियार नहीं करोगे, तब तक तवक्कल करने की तुम्हें इजाजत। बल्कि हमारे एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, बहुत बड़े आलिम, उन्होंने तो अजीब गरीब बात यह फरमाई कि तदबीर के इख्तियार किए बगैर, असबाब को इख्तियार किए बगैर तवक्कल करना यह जिंदीकियत है। वो आदमी जिंदीक है जो खामखाई है, तवक्कल करो, तदबीर कुछ नहीं, इख्तियार कुछ। इसलिए मेहनतें लाजमी और जरूरी हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी होने के बावजूद, रसूल होने के बावजूद, आखिरी रसूल होने के बावजूद, अजीम नबी होने के बावजूद असबाब इख्तियार फरमाते थे। आपने शादियां फरमाई, आप तनाउल भी फरमाते थे, आप नोश भी फरमाते थे। बल्कि एक दिन तो साहबा ने तो यह तय किया था, हम खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, मुसलसल रोजा रखेंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि नहीं, रोजा भी रखो, इफ्तार भी करो, शादियां भी करो, निकाह करो।
ये तमाम दुनिया की तदाबीर और असबाब इख्तियार किए बगैर कोई चारा नहीं है। इसलिए इस चीज को समझना है कि मुआशरत उस वक्त तक आपकी मेरी ठीक नहीं होगी जब तक कि मुआशरत के एतबार से हम तदाबीर और असबाब को इख्तियार नहीं करेंगे, और जब तक इन चीजों पे हम नहीं आ जाएंगे तब तक हम दूसरों को तकालीफ पहुंचाते रहेंगे, कभी किसी नाम पर कभी किसी नाम पर। और असल चीज यह है कि हम हर काम को हर शोबे में इस तरह अंजाम दे दें कि दूसरा आदमी तकलीफ में मुब्तला ना हो। और इसमें हम सब शामिल हैं, इसमें मैं भी शामिल हूं, इसमें आप भी शामिल हैं, सब शामिल हैं। एक दूसरे की गलतियों को माफ करते हुए, अफ़्व का मामला करते हुए जिंदगी के शोबों को मजबूत बनाने की जरूरत है। हमारा ताजिर तबका, मुलाजिम तबका अगर ये तय कर ले, फर्ज करें कि हमें जिंदगी पाक शिफाफ गुजारनी है, तो हमारे उलमा ने फरमाया एक काम करना है कि सूद से अपने आप को पाक करें, यह शोबा खुद ब खुद पाक हो जाएगा। दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जुल्म जिससे एक गरीब तबका तबाह बर्बाद हो गया, उनको तकालीफ ही तकालीफ है, उसकी वजह उलमा लिखते हैं सूद। क्या लिखते हैं? सूद की वजह से माल एक जगह जमा हुआ है, कुछ ही लोग उसको खा रहे हैं, कुछ ही लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। जनाबी वाला जो गरीब है, गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, अमीर है तो अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। तो इससे बढ़कर जुल्म दुनिया में क्या हो सकता है? इसलिए इन चीजों पर गौर करना है बहसत मुसलमान और बहसत इंसान। और फिर जो शोबे आपको अल्लाह ने दिए हैं, ये संजीदगी के साथ इस पर सोचा जा सकता है कि जर्रा बराबर भी कोई अमल आपका मेरा ऐसा न हो कि जिससे गैर हजरात, दूसरे हजरात उसका गलत फायदा उठाएं। मेरी और आपकी हैसियत मुक्तदी की नहीं है। अभी इमाम साहब नमाज पढ़ाएंगे, आप और हम समझते हैं कि हम उसके पीछे क्या हैं? मुक्तदी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी और मेरी, किसी की दाढ़ी है या नहीं है, किसी का कमीज पजामा पहना हुआ है या नहीं है, किसी के सर पर टोपी है या नहीं है, अगरचे ये कमजोरियां हैं, ये तमाम न होने के बावजूद आपकी मेरी हैसियत दुनिया में इमाम की है। किसकी है? मैं वही अक्कत, अगर यहां मौलवी साहब नहीं होगा, बगैर दाढ़ी वाला आगे जाकर इमामत कर सकता है? नहीं कर सकता है? कर सकता है। नहीं करेगा तो बगैर जमात के थोड़े यहां से चला जाएगा, उसको करना पड़ेगा। कुल हु अल्लाह पढ़े, तब्बत यदा पढ़े, वो नमाज पढ़ाए, दाढ़ी ना रखने का गुनाह उसको अलग है, लेकिन नमाज तब भी उसको पढ़ानी पड़ेगी, बगैर जमात के नहीं जा सकते। आपकी मेरी हैसियत दूसरी कौमों के बिलमुकाबिल इमाम की हैसियत है। क्या मतलब? इमाम से अगर कोई गलती होती है तो सबको सजदे सव लाजिम होता है, हालांकि गलती करके इमाम ज़ोबन, हमसे कोई गलती नहीं थी, मगर हम सब मिलकर इमाम के पीछे सजदे सव अदा करते हैं। ठीक इसी तरह कमजोर से कमजोर तर मुसलमान से अगर कोई गलती हो जाए, उसका फायदा मगरिब लोग उठाते हैं। मुसलमान की हैसियत तो इमाम की है, मुसलमान की हैसियत तो बड़ी उम्मत की है, मुसलमान की हैसियत तो यह है कि वो अल्लाह के रसूल का उम्मती है। वो भी जब गलतियां करता है, वो भी शराब में लत है, वो भी ड्रग्स में मुब्तला है, वो भी दूसरों को तकलीफ पहुंचा रहा है, वो भी अपनी जिंदगी के अंदर इफरात और तफरीत का शिकार है, तो हमें क्या मसला है? हम भी तो गलती पे गलतियां करेंगे, तो उनके यहां तो कोई जुर्म ही नहीं होगा। इस एतबार से हमें इस पर गौर व फिक्र करना है कि क्या वाकई हम लोग सही मानों में अपनी जिंदगी को मोतदिल बना रहे हैं। इफरात और तफरीत से बचना ही एतदाल है। अगर आपकी मेरी जिंदगी एतदाल में आ गई, या ट्रैफिक निज़ाम हो, या बाकी शोबों का निज़ाम हो, या तिजारत का निज़ाम हो, हर निज़ाम के साथ कुरान करीम के उसूल को जोड़ें, उसके बाद देखें कि हमारी जिंदगी कैसे गुजर रही है, तो उम्मीद है अल्लाह की तरफ से मदद और नुसरतें जारी होंगी। अल्लाह की तरफ से हदीस में आता है, दो सहाबी रात के अंधेरे में अपने घर की तरफ निकले। एक सहाबी का नाम था उसैद बिन हुजैर और दूसरे सहाबी का नाम है उब्बाद बिन बिश्र रज़ी अल्लाहु अन्हुमा। ऐसी अंधेरी, लाइट का बिल्कुल निजाम नहीं। ये सोचने लगे कि कैसे हम घर जाएं। इनके हाथ में कुछ लकड़ी थी, क्या थी, चलते चलते खुद ब खुद उस लकड़ी में लाइट पैदा हो गई, रोशनी। उस रोशनी की वजह से वो चले। एक कोने में पहुंचे कि एक साहबी को एक तरफ जाना था, दूसरे को दूसरी तरफ जाना था।
जो ही वो अलग अलग हो गए, दोनों की रोशनी जो है वो तकसीम हो गई, एक के लिए अलग हो गई, दूसरे के लिए अलग हो गई। गोया कि एक आदमी जब अल्लाह से मदद मांगेगा निजाम को ठीक करने के लिए, क्या अल्लाह मदद नहीं करेंगे? अल्लाह जरूर मदद करेंगे, जरूर। नंबर एक। नंबर दो, अपने तमाम निजाम को, अपने तमाम शोबों को शुबहात से बचाना है, अपने शोबों को शुबहात से बचाना है। ऐसा न हो कि निजाम शोबे बदनाम हो जाए रिश्वत के नाम पर, ऐसा न हो कि शोबे बदनाम हो जाए सूद के नाम पर, ऐसा न हो कि कश्मीरी कौम बहैसियत मुसलमान बदनाम हो जाए तो सूद खाने वाली कौम है, ये तो रिश्वत लेने वाली कौम है, ये तो जुल्म करने वाली कौम है। इस नाम पर दुनिया में बदनाम हम लोग नहीं होने चाहिए। क्यों? बहैसियत मुसलमान हमें इस मामले में बड़ा गौर फिक्र करने की जरूरत है। क्यों? शुबा भी अगर हो गया इसका भी नुकसान है। आखिरी बात अर्ज करता हूं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, रमजान का मौका है, हजरत सफिया कहती हैं कि मैं हुजूर के पास गई, रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैं अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के पास गई जबकि आप एतिकाफ में थे। तो नबी अलैहि सलाम ने जब मुझे रुखसत किया तो दरवाजे तक आए, उस दरवाजे मस्जिद नबी के दरवाजे के करीब, मस्जिद नबी वही जब हुजूर के जमाने की थी, दरवाजे के करीब हज़रत उम्मे सलमा का घर था। वहां से दो सहाबी आए, वही सहाबी जो जिनका मैंने नाम लिया, उसैद बिन हुजैर और उब्बाद बिन बिश्र रजी अल्लाह अन्हुमा, ये दो सहाबी वहां से आ गए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोनों सहाबा को बुलाया, बुलाने के बाद फरमाया कि जिसके साथ मैं दरवाजे तक आया ये मेरी अहलिया है, जिसके साथ में दरवाजे तक आया ये मेरी क्या है? अहलिया। इसको अच्छी तरह आप सुने। उन सहाबा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, तो हमने तो आपसे सवाल ही नहीं किया, क्या आपने हम पर कोई शुबा किया? हमने तो कोई एतराज नहीं किया ये कौन है, और हमने पूछा भी नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे इसलिए इसकी वजाहत देनी पड़ी कि चूंकि शैतान एक इंसान के अंदर वैसे ही रगू में दौड़ता है जैसे रगू में क्या दौड़ता है? खून। क्या मतलब? कि मुमकिन है आप दोनों के जहन में यह आता कि हुजूर किस खातून के साथ है। क्या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतालिक किसी सहाबी का ऐसा ख्याल आ सकता था? फिर हुजूर ने ऐसा क्यों फरमाया? यह हुजूर ने आपके लिए मेरे लिए फरमाया है कि नबी अलैहिस्सलाम के अंदाज़े मुबारक में है कि आने वाले दौर में हर शोबे में शुबहात आ जाएंगे। कभी रिश्वत का शुबा होगा, कभी सूद का शुबा होगा, कि ऑफिसर और मुलाजिमीन छोटा बड़ा कोई भी हो, इमाम से लेकर मुक्तदियों तक, उनकी जिंदगी ऐसी गुजरनी चाहिए कि शुबहात से भी खाली होनी चाहिए। कोशिश तो वो करे, कोशिश। शुबहात का आना अलग चीज है, लेकिन इस तरह का कोई अमल करना कि शुबह पैदा हो जाए, ये जायज, बिल्कुल जायज नहीं है। इसीलिए बुजुर्गों के मुतालिक आता है कि एक दफा एक बुजुर्ग दाखिल हो गए, वो बुखारी शरीफ पढ़ा रहे थे, बुखारी शरीफ या दरस दे रहे थे, चराग उन्होंने फौरन गुल कर लिया। उसके बाद उनसे कहा कि बताओ क्या कहना है। उन्होंने कहा, हजरत आपने चराग ही गुल कर लिया। फरमाया, ये मदरसे वालों ने चराग पढ़ाने के लिए दिया है, शमा मुझे पढ़ाने के लिए दिया है, तुमसे जो बात करना है वो इस चराग को लेकर मेरे लिए जायज। आप क्या समझते हैं? तिजारत का शोबा इसके बगैर क्या मुमकिन है साफ हो जाएगा? मुलाजमत का शोबा क्या इसके बगैर मुमकिन है साफ हो जाएगा? कोई भी शोबा हो, कतई नजर दुनिया का कितने शोबे हमारे आपके, घरेलू शोबा अलग है, मियाँ बीवी का शोबा अलग है, वालिदैन बच्चों का शोबा अलग है, मसाजिद का मामला अलग है, मदारिस का मामला अलग है, मस्जिदों का मामला अलग है, आपका दफ्तर है, हर दफ्तर के अंदर अलग अलग कितने बड़े बड़े ऑफिसर होंगे, उनके शोबे हैं, उससे नीचे आ जाए उनके शोबे हैं। हर आदमी जब दूसरे से बात करेगा तो वह एक शोबा होता है, वह एक शोबा है उसकी जिंदगी का। वहां पर कोई ऐसी हरकत, कोई ऐसा अमल, कोई ऐसी बात न हो कि जिससे लगे कि शुबहात में उम्मत गिरफ्तार हो रही है। इसलिए हम इरादा करेंगे, इंशाअल्लाह इरादा करेंगे। एक तो नमाज की पाबंदी, मैंने यहां एक दफा जुमा पढ़ाया और पहला जुमा वो था मेरा, मैंने मुखातब करके अपने ऑफिसर को यह कहा था कि जुमा के दिन पहली अजान पर दफातर बंद। कश्मीर में 99% मुसलमान है, यहां मुमकिन है, ये कोई नामुमकिन नहीं है, यह कोई नामुमकिन नहीं है। पहली अजान के बाद हम सीधा हमारा जाना कहां होना चाहिए? मस्जिद में होना, इल्ला ये कि किसी को इमरजेंसी है। इमरजेंसी एक अलग केस होता है, हर एक के लिए इमरजेंसी नहीं होती, इमरजेंसी एक अलग चीज होती है, उनके लिए मुमकिन गुंजाइश होगी। लेकिन हम यूं ही अजान सुनेंगे, पहली अजान,
अब तो हमारे फुकहा के बकौल अंडा फरोख्त करना भी हराम के दर्जे में, फरोख्त करना हराम के दर्जे में। चिजाए कि हम खड़े रहें, बेकार बातों में रहें, यूं ही गुफ्तगू करते रहें, यूं ही गपशप में रहें, यह हमारे लिए कोई अच्छी चीज करेंगे इंशाअल्लाह इरादा। अल्लाह ताला मुझे भी समझना नसीब फरमाए, आपको भी समझना नसीब फरमाए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून।